Very good morning to all of you. Today we are here to discuss on the chapter Control and Coordination, which comes under Biology section, chapter number 7 according to NCERT book. So first of all, I am welcoming all of you and I am highly thankful to you for joining my live classes also, because as per the news received by CBSE, might be possible that by 31st of December we will get the examination schedule, and the situation is very panic, because I am much aware with this fact that all of you, those who are studying in class 10th or 12th, was continuing suffering from class issue. You are not able to attend the classes from past 9 months, so it's quite tough for you. So for that purpose, I am continuously trying my level best to give you some thoughts, some informations relevant to the chapter, and chapter by chapter, this one is my today's topic, Control and Coordination, by which I am hoping that you are also studying very well, and with the help of some teachers and tutors, you are also knowing the fact what is present inside this chapter. But it's my duty also to explain you about the fact of the chapter, that what do we mean by control and coordination. Actually, in common language, if we have to understand that what is the meaning of the heading, so if we will know the meaning of the heading, then definitely we will know the concept, we will know the contents of the chapter. In this chapter, we will study about the reactions by the animals, because in the biological segment, all of you are aware or all of you are knowing the fact that all the living organism is classified into majorly two types, either plants, either animals. Actually, human being is also comes under animal segment. So that's why if I am using the term like animal, it doesn't mean that only we will discuss about the living thing which is having 4 feet and all. So we have to consider ourselves also for the better understanding. So for the today's session, we have to discuss, we have to know that what do we mean by control and coordination. अरे भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है? तो एक तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है. एक्चुअली इन कॉमन लैंग्वेज इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट, लाइक भूख लगता है. इफ वी विल फील हंग्री, देन व्हाट वी विल डू? वी विल आस्क फूड टू आवर पेरेंट्स, टू आवर मदर और आवर सिस्टर. भूख लगती है तो खाना मांगते हैं. अगर प्यास लगती है तो पानी मांगते हैं. फर्स्ट थिंग, वी आस्क फॉर वाटर. द सेकेंड थिंग, इफ द वाटर इज प्रेजेंट इन अ ग्लास इन फ्रंट ऑफ मी, देन व्हाट वी विल डू? वी विल टेक. हम लोग ग्लास उठा लेते हैं एंड जस्ट ट्राई टू ड्रिंक. सो इट इज़ वेरी कॉमन लैंग्वेज. इट्स very common for us that we will know that भाई एक सिस्टम तो होगा, कोई कारण तो होगा. वाई एकाएक हमारा हाथ सामने रखी वस्तु की तरफ क्यों गया? इट मीन्स वी आर गेटिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम आवर ब्रेन. इस चीज को समझना. इसका मतलब मस्तिष्क हमें इस प्रकार का सिग्नल देता है कि आप अपने हाथों को आगे बढ़ाइए. हम अपने हाथ को आगे बढ़ाए, फिर मस्तिष्क सिग्नल देता है कि नाउ होल्ड द थिंग टाइटली, और आप उसको उठाइए. इस चीज को ही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है. वी हैव टू डिस्कस दीज थिंग्स, दैट हाउ इट इज पॉसिबल. हम लोग कोई वस्तु सामान्य अवस्था में होती है, इफ एनी सब्सटेंस इज हैविंग और एनी मटेरियल इज having the normal temperature, then we will like hold it like that, पकड़े हुए. But if somebody will come and tell it to us that hold the ice cubes for 5 minutes, it's not possible.
because we will feel some difficulty. If at any place or the water is too much hot, and if somebody will give it to us in a steel glass, and then they will tell us to hold it, हम नहीं पकड़ पाएंगे. क्यों? चूंकि वो गर्म है. हम यह फील करेंगे कि हमारे हाथों को परेशानी हो रही है, माई हैंड इज गेटिंग पेन, तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं. इस चीज़ को ही हम लोगों को इसमें पढ़ना है कि आखिर ये कैसे होता है, हाउ इट वर्क्स, विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो फॉर दैट, सबसे पहली चीज, द फर्स्ट थिंग व्हाट आई एम टेलिंग इट टू यू, दैट हम लोग जानते हैं ना, ऑल ऑफ अस, लाइक इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड ऑल, देन डेफिनेटली यू आर अवेयरिंग दैट हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स वी आर हैविंग. तो एक्चुअली जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, दे आर कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द control and coordination. It means, in another word, we can say that in control and coordination, the sense organs are taking part with the help of, we will discuss it later, कि भाई वो किसके सहयोग के साथ काम करते हैं. तो होता क्या है कि आपको एक स्ट्रक्चर, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट वन स्ट्रक्चर. हेयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है. And neuron is nothing but it is responsible for the control and coordination. So in the system, I am just explaining you, so I am requesting you to kindly focus it on the board. Here is the picture in which we are seeing that these things are known as dendrite. These things are, एक जो छोटी छोटी धारियां हैं, these things are known as dendrite. अंदर जो है वो सेल बॉडी है. इनसाइड द स्ट्रक्चर्स मेकिंग बाय द कलेक्शन ऑफ डेंड्राइट्स, द इनसाइड एरिया इज नोन एज सेल बॉडी. इन द सेंटर ऑफ द सेल बॉडी वन थिंग इज प्रेजेंट एंड दैट थिंग विल नोन एज न्यूक्लियस. दैट थिंग विल बी नोन एज न्यूक्लियस. एंड आफ्टरवर्ड दे विल कंटिन्यू इट्स स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर, with the help of very thin line. Here we will see the axons. And after axons, here is the nerve ending. It means what? We have to, in the neuron, we have to the structure. If somebody will tell it to us that what is the role of neurons. So neurons is responsible for control and coordination of the body. First thing, the neuron is completely responsible for the control and coordination of the body. So if neuron is responsible, then definitely, like if I will ask it to you that what is the fundamental unit of life, then you will tell it to me that cells are the fundamental unit of life. Then just after that, what we discussed about the structure of cell. So if for control and coordination, if any teacher or any motivator or any guide will tell it to you that neurons are responsible for the control and coordination, then definitely you have to know about the structure of the neuron, that how neuron, what is the formation of neuron, how neurons form, कैसे वो बनता है, आखिर उसका स्ट्रक्चर, उसकी आकृति कैसी होती है. तो आपको मूलतः जब आप न्यूरॉन्स की रचना करते हैं तो आपको मूलतः जो है, बेसिकली यू हैव टू नो अबाउट द डेंड्राइट्स, the small lines. Second, inside cell body, center of the cell body is known as nucleus. The lower part, that will be known as axons, and the last tip is known as nerve ending. That thing will be known as nerve ending. Ab now the game starts. Why? Because now I am going to explain you that how it works. So just kindly listen it to me कि ये काम कैसे करता है, how it works. हम इस चीज़ को कैसे समझेंगे, how we can understand it in a very easier manner. कैसे, because biology is मतलब जब हम लोग पढ़ते थे तो सबसे जो ज़्यादा उबाऊ सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ मैंने कंसिडर किया, that was biology
and in SST that one was civics or history. समझने के लिए कुछ होता ही नहीं था, याद कर लेना है. वी हैव टू रिमेम्बराइज ऑल द थिंग्स वॉट एवर प्रेजेंट इन द बुक. लेकिन अब लगता है while I am teaching to the student, then I feel that no, I can easily explain them. There is no need to simply just draw the pictures several times and just memorize, because जब तक आप फंक्शन को नहीं जानेंगे तो पक्का है कि आप ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द पिक्चर और डायग्राम ऑफ द कंसर्न थिंग डेफिनेटली यू विल डू सम मिस्टेक्स. और कुछ मिस्टेक्स होने के बाद क्या होता है कि डायग्राम अपनी प्रॉपर्टी खो देता है, अपनी मीनिंग खो देता है. तो अगर हम फंक्शन को जान जाते हैं तो डायग्राम में याद रहेगा कि हाँ ये 3-4 चीज़ें फंक्शन में हैं, तो ये सारी चीज़ें मेंशन है कि नहीं. उससे आप जो रिलेवेंट नेम है ऑफ द टर्म वो आपको याद आ जाएगा और आप आसानी से लिखेंगे. ये नर्व एंडिंग होता है. ये नर्व एंडिंग को अब हम एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं, त्वचा. व्हाट आई टोल्ड इट टू यू दैट ऑल द सेंस ऑर्गन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर taking part into control and coordination. So now I am going to start with skin. Now I am going to start, or I am giving you an example with the help of skin, a sense organ. त्वचा sense organ है. तो होता क्या है, hair on the surface, just on the surface of the skin, हम लोग फील करते हैं कि ठंडा है तो भी छोड़ देना है, गर्म है तो भी छोड़ देना है. तो आखिर ये ब्रेन जो है ये आखिर कैसे काम करता है, कैसे कमांड देता है, कैसे मेरे हाथ को यह आदेश आता है कि इसको वी हैव टू होल्ड इट टाइटली और वी हैव टू जस्ट लीव इट जस्ट क्विकली, कि गर्म है तो छोड़ दो, ठंडा है तो छोड़ दो, साधारण है तो पकड़ के रखो. यू विल व्हेन एवर इफ यू विल फील बेटर फॉर ड्यूरिंग द होल्डिंग ऑफ द थिंग्स. तो ये होता है नर्व एंडिंग. ये टिप पर होता है. नर्व एंडिंग क्या होता है, टिप पर होता है. ये जो चीजें हैं नर्व एंडिंग जो है वो टिप पर होता है. अब उसके बाद आता है आपका एक्सॉन्स. एक्सॉन्स क्या करता है कि जो सिग्नल्स होते हैं, जो सिग्नल्स ठंडा है गर्म है जिस प्रकार की उसकी अनुभूति है, वो ग्रैब करते हुए ये आपके इसको भेजता है. किसको भेजता है, न्यूरॉन के नेक्स्ट सेगमेंट को, सेल बॉडी को. फिर सेल बॉडी क्या करता है, with the help of the dendrite, वो उस चीजों को भेजता है स्पाइनल कॉर्ड में. Here you have to memorize during the our body in the back side जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड होता है. तो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, हमारे जो डेंड्राइट्स होते हैं वो सारे चीज को कलेक्ट करके हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भेजते हैं, और वो स्पाइनल कॉर्ड से वहाँ वो जो चीजें हैं वो फिर ऊपर आते आते यहाँ, और यहाँ के बाद वो हमारे ब्रेन को कमांड जाता है. एंड आफ्टर गेटिंग द सिग्नल्स फ्रॉम द नर्व एंडिंग टू द ब्रेन, then only brain will capable or brain will become able to give you the command that what we have to do. So actually with the help of this system, getting the signals, transferring the signals to the that one spinal cord, and from a spinal cord to brain. This is the path for the movement of signals from the surrounding to our brain. And afterward the brain will give us the command that what we have to do. So हमको अगर ये चीजें याद रहे कि हाँ भाई यहाँ से हम सिग्नल लिए, यहाँ से ट्रांसमिट किए, यहाँ पर एकत्रित हुआ, यहाँ से डेंड्राइट के माध्यम से वो स्पाइनल कॉर्ड में गया, एंड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इट विल मूव और इट विल मूव फॉरवर्ड टू द ब्रेन, एंड after the reaching the signals from nerve ending to the brain, then only our brain is capable to give us the command that what we have to do. This thing, the study of these things, the study of these facts, we have to study in the chapter control and coordination. So it's my request to you that during the examination, if we have to write a notes on the neuron, which is the basic structure responsible for the control and coordination, what we will do, a step 1 we will make the diagram, a step 2 just a step 1 make the diagram, a step 2 put naming like nerve ending, axons, nucleus, dendrite, cell body. A step 3 function of
1 2 3 4 5. With the help of these 3 steps, you can easily explain yourself or easily explain the function and the module, the nature, the diagram of the neuron easily in the examination. So if you have to write, or if you have to explain, if you have to note down any answer for the any question, just you have to classify your work in such kind of manner, because with the help of that you can easily explain yourself, and you can easily explain your idea, your concept relevant to the question. So this one is the fact. अब हम लोग जानेंगे, now we will know that what do we mean by action, what do we mean by reflex action, what do we mean by action. If in a common language I am explaining it to you, that if I am feeling thirsty, then if I will see that a glass of water is present in front of me, then to lift it up, उसको लेने के लिए हाथ का मस्तिष्क के द्वारा प्राप्त सिग्नल के आधार पे बढ़ाने के लिए, उठाने के लिए बढ़ना. If this process we will consider as a action, then in another word, if we will feel that the water is too much hot, it's not possible to lift it up, or if the water is too much cold that we can't hold it for a long time period, so उसको हम लोग छोड़ देते हैं, just leave the water as well as where it was. तो ये जो होता है ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ये जो होता है यह रिफ्लेक्स एक्शन होता है. एंड द एक्शन एंड द रिएक्शन, reflex action, both will take place with the help of the signals which we will get it by our brain. ये दोनों चीजें, पानी पीने के लिए, ग्लास को उठाने के लिए संकेत अथवा दिशा निर्देश मस्तिष्क द्वारा, अथवा गर्म अथवा अतिरिक्त काफी गर्म अथवा काफी ठंडा पानी होने के कारण उसे छोड़ देना, रिफ्लेक्स एक्शन. ये दोनों चीजों के लिए जो कमांड होता है वह किसके द्वारा होता है? ब्रेन के द्वारा होता है. क्यों, कैसे होता है? ये चीज इमीडिएट वर्क करती है. ये ब्रेन जो है तुरंत लाइन अप करता है और विद द हेल्प ऑफ द स्किन सेंस वो आपको कमांड दे देता है दैट व्हाट वी हैव टू डू और व्हाट वी हैव टू नॉट टू डू. अब तुमको याद होगा ऑल ऑफ यू, अब इसको सामान्य चीज में समझो. एक तुम लोगों से काफ़ी पहले से लाइक व्हेन ऑल ऑफ यू वी आर स्टडिंग इन क्लास 8 और 9 और 10, तो एक क्रिकेट से जोड़कर एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन होता था दैट इफ द बॉलर विल थ्रो द बॉल और इफ समथिंग विल हैपन टू अस. इसको कॉमन लैंग्वेज में समझो कि इफ समथिंग इज हैपन टू अस देन हाउ मच टाइम द ब्रेन विल टेक टू एक्सप्रेस देयर सेल्फ और टू पास द सिग्नल्स. भाई रिएक्शन के लिए रिएक्शन टाइम कितना होता है, किसी भी एक्शन के लिए ब्रेन का रिएक्शन टाइमिंग कितना होता है. ऑलवेज यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड दैट इफ अगर आप स्वस्थ हैं, इफ यू आर नॉट ड्रंक, if your brain is in working condition completely, then 0.22 second, 0.22 सेकेंड इज द रिएक्शन टाइमिंग फॉर अस. एक दिमाग को कोई वस्तु होती है उसको तुरंत अपने अंदर लेकर और कमांड देने में ब्रेन को मात्र 0.22 सेकेंड्स लगता है. और इसी चीज को हम लोग सामान्यतः समझते हैं एक नॉर्मल में कि एक व्यक्ति, जब आप कभी सुनते होंगे कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी वॉज नॉट इन गुड पोजिशन, कि भाई उन्होंने कुछ पी रखी थी या इस टाइप का कुछ, तो उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया. क्यों हो गया? बिकॉज इन द नॉर्मल कंडीशन द रिएक्शन टाइम बाय ब्रेन इज 0.22 सेकेंड. बट इफ आवर ब्रेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, अगर हम किसी भी प्रकार की गलत वस्तुओं का सेवन किए हुए हैं तो हमारे ब्रेन के रिएक्शन टाइमिंग में बढ़त हो जाती है. हम लोगों का रिएक्शन टाइम टेकिंग पीरियड जो है वो ज्यादा होता है, जिसके कारण चीजों को देखकर तुरंत निर्णय करने की क्षमता जो हमारे ब्रेन के द्वारा 0.22 सेकेंड में होती है, वो टाइम पीरियड बढ़ने के कारण क्या हो जाता है कि ड्यूरिंग दैट इंक्रीमेंट इन द टाइम पीरियड हम उस दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं. सो दैट्स वाई आदमी लोग कहते हैं कि दैट इफ यू हैव टू वर्क हार्ड, इफ यू हैव टू गेट सम
achievement, then definitely always you have to become very conscious and you have to keep your brain in healthy condition. आप एक प्रोवर्ब है, आपके गार्जियन भी बोलते होंगे कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो स्वस्थ मस्तिष्क का अर्थ यही होता है कि आप किसी भी समस्या को लेकर, किसी भी प्रकरण को लेकर कितनी जल्दी और कितनी अच्छाई के साथ, कितनी जल्दी, दैट वन इज नोन एज रिएक्शन टाइमिंग, और कितनी अच्छाई के साथ, दिस वन इज सोशल इश्यू, दैट आप अपने कामों को कर पाते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड दिस इज द थिंग दैट व्हाट वी हैव टू स्टडी। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद हमको जानना होगा, वी हैव टू स्टडी अबाउट द रिफ्लेक्स आर्क, वी हैव टू स्टडी अबाउट द रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क कुछ नहीं होता है, दिस वन इज द फंडामेंटल यूनिट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फॉर द ट्रांसफरिंग द सिग्नल्स फ्रॉम द मीन्स सराउंडिंग्स टू द ब्रेन। सो अब है कि वो चीज़ें वहाँ से लेकर हमारे मस्तिष्क तक गई। तो मस्तिष्क तक गई कैसे? पहले वो चीज़ें वहाँ से कहाँ सिग्नल दी गई? स्पाइनल कॉर्ड तक। कहाँ तक सिग्नल दी गई? स्पाइनल कॉर्ड तक। तो वो जो स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल दी गई, अब उसी का हर चीज़ का जो है उसको हम लोग को इसमें स्टडी करना है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, हेयर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पेज नंबर 117, in the upper side right side corner, if you will see the picture, then here is the picture of arm, here is the picture of arm. So ये पिक्चर आपके हाथ का पिक्चर दिया गया है, and here is the tip, here is the tip। आप मान के चलो कि यहाँ वो चीज है, सेंस ऑर्गन है, आपका स्किन है। तो इस चीज को समझो कि यहाँ से कंप्लीट सूचनाओं का प्रवाह कंधे तक होना, यहां से कंप्लीट सूचनाओं का प्रवाह कंधे तक होना, और कंधे के बाद उसके सूचनाओं का प्रवाह कहां तक होना? स्पाइनल कॉर्ड तक होना, और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक होना। तो इस चीज को ही जो है हम लोग रिफ्लेक्स आर्क के तहत पढ़ेंगे। सो इन माय नेक्स्ट सेशन वी विल डेफिनेटली डिस्कस अबाउट द डायग्राम, बिकॉज रिफ्लेक्स आर्क इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट पॉइंट in which you have to make a diagram of your hand and all, and with the help of some diagram you have to show it that the signals or the feeling which is gained by your hand, the surface of your hand, how it will move, how it will move, कैसे वो मूव करता है। तो सबसे पहले कमांड जो है वो हाथ से जाता है ब्रेन को, सबसे हाथ से जाता है स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड से जाता है ब्रेन को, फिर वापस ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से हाथ के टिप को। की नाउ व्हाट यू हैव टू डू, द कंप्लीट दिस वन, द ट्रांसफरिंग और द मूवमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द हैंड टू द ब्रेन एंड टू द ब्रेन and from to the brain to the hand. These thing we have to study under the reflex arc. ये बड़ा ही आसान सा चीज है। एंड जब हम रिफ्लेक्स आर्क को पढ़ लेंगे, सो here I am having a question and or in another word you can tell it to me that I am having an assignment for you, that make a question and just draw the diagram of a picture which shows reflex arc, which shows reflex arc. रिफ्लेक्स आर्क को परिभाषित करते हुए एक तस्वीर बनाइए और उसको काइंडली व्हाट्सअप इट टू मी ऑन माई 333 नंबर. व्हाट नंबर इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू और ऑल ऑफ यू आर हैविंग माई व्हाट्सअप नंबर. आप उसको भेज देंगे. अगेन याद रखिए 2 questions फॉर टुडे सेशन. बाई द टुडे सेशन ड्रॉ द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन्स and write the function. Draw the diagram of neuron and write the function. And question 2, draw the diagram of a picture of an example which explains about the arc, reflex arc. ये 2 question है जो आपको दिया गया है. You have to make the question and you have to submit your assignment either on the app or either on the WhatsApp. And I am hoping, because मैं कभी कभी देता हूँ, so it's I am going to assure you that if you will work hard or if you will convince me completely that we are also studying very well in my home, then definitely
that thing will give us the good feedback, and during the examination timing, during the internal marks assessment timing, all your activity, whatever the activity I am going to give it to you, it contains some marks. ये कुछ ना कुछ अंक अपने अंदर समावेशित रखता है. सो अगर आप भेजते हैं तो आपकी तत्परता को दिखाता है, और हमें अपने जब हम लोग नंबर देते हैं तो उस कार्य को करने में हमें आसानी होती है, क्योंकि हमें जो है बच्चों के बारे में पता होता है कि पार्टिकुलर स्टूडेंट कौन कितना एक्टिव है और नहीं है. एंड आई एम स्टिल वॉचिंग इट फ्रॉम पास्ट 8 months. सो डेफिनेटली जो पढ़ रहे हो यू विल गेन समथिंग, बिकॉज आई एम ऑल्सो हैविंग द अटेंडेंस एंड ऑल, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा. सो आफ्टरवर्ड वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन ब्रेन. आफ्टरवर्ड वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन क्या है भाई? ह्यूमन ब्रेन ही कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करता है फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ और फॉर द मेकिंग ऑफ, फॉर द हैपनिंग ऑफ ऑल द एक्शंस एंड रिएक्शंस. क्योंकि जो आपके नर्व एंडिंग हैं, जो आपके डेंड्राइट हैं, वो सारे सिग्नल्स को फाइनली स्पाइनल कॉर्ड में भेज देते हैं, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड से वो आगे कहाँ जाता है? ह्यूमन ब्रेन में जाता है. कहाँ जाता है? ब्रेन में जाता है. एंड फ्रॉम देयर ओनली वी विल रिसीव द कमांड for any kind of particular action, that what we have to do or what we have to not to do. So human brain जो होता है वो अपने अंदर काफ़ी बड़ी चीज़ों को समावेशित रखता है. So in my next session we will discuss about the important parts of the human brain. हम लोग उसमें फिर ह्यूमन ब्रेन की चर्चा करेंगे कि ह्यूमन ब्रेन क्या है, उसका हमारे शरीर के अनुपात में क्या स्थान होता है, हाउ इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द टास्क और एनी मूवमेंट हैपेंड बाय एनी ह्यूमन बॉडी एंड ऑल, एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी लाइक सेरिब्रम, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इनके विषय में भी हम पढ़ेंगे. सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू दैट आफ्टर मेकिंग द नोट्स वॉट एवर आई गिव इट टू यू, प्लीज just check it once or just visit once, either on Google or either on by the help of book or reference book, that in human brain what is the function of cerebrum, what is the function of cerebellum, what is the function of medulla, what is the function of pituitary glands. तो इन चीज़ों को आप भी जान के रखना, क्योंकि उसके बाद होगा क्या कि whenever I will start discussing, आपका रिवीजन होता जाएगा. You will feel that हाँ ये चीज़ तो मैं जान रहा हूँ ना, These things are very common. तो उससे क्या होता है कि उसके बाद after completion of the class you will feel that all the things, all the content of the chapter is tightly fixed in our mind. No one will responsible to move it here and there. So thank you. Have a great day. Thanks.